Good morning, class. Here we go once again with the new video in your new lesson 4th, Advanced Features of Access in class 8th. Okay, so this is the first video in your lesson 4, Advanced Access Features. So let's start this video. In this video, we can discuss about in these topics like sorting, filtering, and searching data in Access, creating queries, forms, and reports, and in Access. These are some common features in Access. So let's begin the first heading is sorting, filtering, and searching data in Access. How do we sort, filter, and search our data in Access? Let's get start. Similar to Access sheet, you can also sort and filter data from a table in Access. Okay, sorting data in a table. How do we sort in a data? Data in Access. Let's sorting data will be arrange the row in ascending or descending order with respect to a given field to sort following the steps below. If you want to sort your data, in Access, you just follow these instructions step by step and you can easily find your data in Access. Okay, the first step is select the field on which you want to sort. जो आप फील्ड चाहते हैं सिलेक्ट करिए उस फील्ड को, जिस फील्ड को आप शॉर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए. देन सेकंड स्टेप इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फील्ड नेम. सेकंड स्टेप है ड्रॉप डाउन एरो पर जाइए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करिए. देन थर्ड स्टेप इज द सिलेक्ट शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. सिलेक्ट करिए सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इट मीन्स टू से असेंडिंग ऑर्डर में करिए, और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल और मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर. इट विल बी ओके ना. द टेबल विल बी शॉर्ट accordingly. You can also sort records by using the ascending descending option from the sort and filter group under the home tab. If you want to ascending or descending order, you want to choose ascending or descending, you just go in the home tab, and you want to filter, just filter now. This is the graphical show to how to filter our data in Access. So when we put the home tab, और जब हम home tab पर होते हैं, क्लिक करते हैं, पुट करते हैं, then show in the figure कि जब आपको दिखता है कि आपने कोई लिस्ट क्रिएट कर ली है. then next one is चाहे आप कोई भी शॉर्ट करना चाहें, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे एड्रेस से हो, चाहे नेम से हो, एम्प्लॉयमेंट्स आईडी हो, शॉर्ट पर ऊपर क्लिक किया. ऊपर क्लिक करने के बाद शॉर्ट पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चूज इफ यू वांट. ओके, एज यू वांट यू जस्ट चूज इट. Filtering data in a table. If you want to filter your data in a table, you just follow these instructions also step by step. You just follow and you able to know how to filter our data. Okay, using the filter option, you can display a selected numbers of record based on the one or more conditions. So the step 1 is click on the drop down list on the right of the field heading. The second step is click on the select all option to deselect all the checks box from the filter section. The third step is click on the checkbox for the record you want to filter and click on it. Click on OK. The record will be get filtered. आपका जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर्ड होगा. लाइक एग्जांपल, those who want to filter his data, just instructions follow step by step and you can easily filter like this. जब आप short and smallest to largest कर रहे थे short में, उसी में आपका numbers of listed आता है filter करने के लिए. जिस डेटा को आप filter करना चाहते हैं, you just click on this. उस पर आप easily click करके अपने डेटा को filter कर सकते हैं. Okay, so next अप्लाइंग अ फिल्टर. जब आप फिल्टर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखते हैं सैलरी का जो आपने फिल्टर अप्लाई किया था वहां पर सिलेक्ट होकर आ गया है. फिल्टरिंग डेटा चाहें तो कर सकते हैं. यू कैन आल्सो फिल्टर रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग द फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप अंडर द होम टैब. जो होम टैब पे शॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप मिलेगा, आप उसमें इजिली फिल्टर कर सकते हैं.
कीप इन माइंड में क्या रखना है, अ फिल्टर आइकन अपीयर्स ऑन द फील्ड हेडिंग वेयर द फिल्टर इज अप्लाइड. ओके, यूजिंग नंबर फिल्टर, आप इजिली आप नंबर फिल्टर्स के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं. यू कैन आल्सो filter records based on condition that select data while greater than, less than, equal or not equal to same other values. The step one is, अगर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिंक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए. द नेक्स्ट स्टेप्स जब करते रहेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा. द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द राइट ऑफ फील्ड heading. The second step is from the drop down list select the number filtered options. Okay, the third step is from the sub menu में जाइए, that appears select the option less than पे करिए या greater than पे करिए. The fourth है custom filter पर भी जाकर आप easily customize कर सकते हैं अपने डेटा को. Okay, this is only inform you to this video how to we filter our data. With the next video we can discuss about fully completed based on the Access worksheets. हम Access worksheet पे work करेंगे and then we can easily filter our data in Access worksheet. Okay, searching for a record in a table. How do we search a record in a table? Let's see. The search box is used to search for a record. It is located at the bottom of a Access window and to the right of the record navigation bar. जो आपका सर्च बॉक्स है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको बॉटम टू Access में मिलेगा और राइट साइड में रिकॉर्ड नेविगेशन बार में मिलेगा आपको. इसमें स्टेप क्या है, टाइप इन द सर्च बॉक्स the keyword to be searched. Access will be highlighted field on the record that contains the data. आप डेटा में जैसे ही कंटेंट में क्लिक करते हैं फिर डेटा को फिल करें, जो भी आप एक्सेस में जो भी आप चाहते हैं, जो भी सर्च करना चाहते हैं वो इजीली आप सर्च कर सकते हैं. प्रेस द एंटर व्यू द नेक्स्ट एक्यूरेंस ऑफ द सेम डेटा. आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं. जो नेम आप टाइप करेंगे वही आपका सिलेक्ट होकर उतना ही ऑप्शन, जैसे आपने यहाँ पर फिल्टर्ड में सिंग टाइप किया था तो जितने में सिंग होगा तो पहले से ही सिलेक्ट करके रख देगा. ओके, क्रिएटिंग क्यूरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट इन एक्सेस. हम कोई भी फॉर्म को या फिर रिपोर्ट्स को कैसे एक्सेस में क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सी. The create tab of Access 2010 provides option to create a query. जो आपका 2010 ऑप्शन है वो प्रोवाइड कराता है टू क्रिएट अ क्वेरी आप आराम से मीन्स लिस्ट आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं. From and report in design view and also using a wizard. Let us now learn how to create each of these object in Access. अब हम देखते हैं कि इसमें जो रिकॉर्ड को फाइल को क्रिएट करते हैं, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, क्यूरीज इन एक्सेस. अ क्यूरी इज यूज्ड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वन और मोर टेबल इन अ डेटाबेस बेस्ड ऑन अ कंडीशन. जो क्यूरी डिजाइन होती है, फिर जो क्यूरी होती है एक्सेस में, वो एक या एक से अधिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में इजिली हेल्प करता है. क्रिएटिंग अ क्यूरी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. क्यूरी सिंपल ऑप्शंस है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू गेट अ न्यू क्यूरी इन योर एक्सेस. सो स्टेप 1 इज क्लिक ऑन द क्वेरी डिजाइन बटन इन द क्वेरीज ग्रुप अंडर द क्रिएट टैब. अब आप क्रिएट टैब में जाइए. क्रिएट टैब में जाने के बाद क्यूरीज में जाइए. क्यूरीज ग्रुप में जाने के बाद क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करिए और आपको एक एम्प्लॉयमेंट लिस्ट क्रिएट होकर आएगी. यहाँ पर आप टेबल का नाम दे सकते हैं. द शो टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन. ये जब डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा, क्लिक ऑन द डिजायर्ड टेबल नेम अंडर द टेबल एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन. अब आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स या फिर कुछ और नाम इसका दे सकते हैं, या लिस्ट का नाम मीन्स जो आप टेबल क्रिएट करते हैं उसका इजिली आप नाम दे सकते हैं. नाम देने के बाद आप उसे ऐड करा सकते हैं. The query design view opens consisting two sections. The upper section shows the table and field. The lower section is called the query design
grid. It is used to include the field required in the query, set the conditions for selection and set the sorting order to data delete. Okay, displayed. जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से क्यूरीज दिखाएंगी, एम्प्लॉयज की लिस्ट जो आपने डेटाज की थी वो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगी। अभी आप क्यूरी 1 पर जा रहे हैं। द थर्ड स्टेप टू इंक्लूड द EID. E means employment ID, employment name and address field in our query. Double click on the each field and to insert table to place them in a grid. अब आप इस पर डबल क्लिक करके इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं डबल ग्रिड लाइन में। To select field and table names appears beside the field and table labels and the table name automatically. As we want to display the employment ID, employment name, employments who are editor, writer, the value editor when it is quotes as the conditions value to check while selecting the record. अब आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आईडी, एम्प्लॉयमेंट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड पोस्ट, सारी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं और इजीली आप क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव बटन टू क्विक एक्सेस टूलबार टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, एंटर द क्वेरी नेम एंड एक्सेस एडिटर। अब आप सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन जब सेव करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन आकर आएगा जिसमें आप क्वेरी का नेम एडिटर नाम से सेव कर सकते हैं। रनिंग क्वेरी कैसे करते हैं, क्वेरीज को रन कैसे करते हैं, सो लेट अस सी हाउ टू वी रन आवर क्वेरीज इन एक्सेस। यू कैन रन अ क्वेरी इन 2 डिफरेंट वेज। हम 2 डिफरेंट वेज में अपनी क्वेरीज को रन करा सकते हैं। लेट गेट सी। You can run a query by clicking on the run button on the result group on the query design tab. आप इजीली क्वेरीज को रन करा सकते हैं। आप रिजल्ट टैब पर क्लिक करिए और रन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रन बॉटम ऑन द रिजल्ट टैब। जब आप रिजल्ट टैब में रन को सिलेक्ट करेंगे द क्वेरी डिजाइन टैब, यू कैन रन अ क्वेरी डबल क्लिकिंग ऑन द क्वेरी नेम। अब आप क्वेरी नेम पर भी डबल क्लिक करके क्वेरीज को रन करा सकते हैं जो कि नेविगेशन पेन में मिलेगी। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्म्स इन एक्सेस। एक्सेस में हम कैसे फॉर्म्स बना सकते हैं। अभी तक हम क्वेरीज की बात कर रहे थे बट नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट फॉर्म्स इन एक्सेस। हम फॉर्म्स की बारे में बात करते हैं। अ फॉर्म इज जनरली यूज्ड टू व्यू वन रिकॉर्ड एट अ वन टाइम। हम एक रिकॉर्ड को एक टाइम में, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक टाइम में देखने के लिए हम रिकॉर्ड का यूज करते हैं। इट मेक्स द डेटा एंट्री प्रोसेस इजियर फ्रॉम द यूजर फॉर द यूजर। इट इज डिस्प्ले द फील्ड ओनली वन रिकॉर्ड although data can be entered easily in the data sheet view of the table too, but a form is more user friendly. Registration can be put on individual form components to ensure that the data is entered in a valid form. आप इजीली किसी भी फॉर्म में अपने डेटा को फिल करा सकते हैं। यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट की एक फुल डिटेल को एंटर करा सकते हैं। यहाँ पर जो आपको डिजाइन में जब आप जाते हैं, डिजाइन में जाने के बाद जब आप डेटा क्रिएट करते हैं या फिर कहें कि आप एक्सेस में फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म एक पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल होती है। अभी तक आपने डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, कई सारे व्यक्तियों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को फॉलो करने के बाद आपने फिल किया। बट नाउ जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, डिजाइन में जाकर जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, जो फॉर्म जब क्रिएट होता है तो आप एम्प्लॉयमेंट लिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एम्प्लॉयमेंट डिटेल आती है तो 1 पर्सन एट अ टाइम, एक पर्सन की एक समय में डिटेल दी जाएगी। यहाँ पर फुल डिटेल एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, सैलरी क्या मिलेगी और पोस्ट क्या है उसकी। दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स लिस्ट। ओके, रिकॉर्ड नेविगेशन बार ये है आपका, कितने रिकॉर्ड्स आपने क्लियर कर लिए हैं। न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बॉटम में ये दिखेगा आपको एंड देन सर्च रिकॉर्ड बटन आपको ये मिलेगा। ओके, दीज आर सम बेसिक इन इंफॉर्मेशन फॉर्म।
these are some instructions when we create a separate video about this. We can discuss fully with the practical based. Okay, so now this is the information to how to work. Okay, record in access. Record in access, a record is used to present data in user friendly format manners, which can also be printed. Reports offers a way to view, format and summarize the information. जो आपकी reports होती हैं वो किसी एक person की particular information से related होती है, वही आपकी report कहलाती है. Okay, we can also print it, उसे हम print भी कर सकते हैं, उसे format भी कर सकते हैं, summarize भी कर सकते हैं और दूसरों को inform भी easily कर सकते हैं. You can design a report in a different way. We learn to design a report using the report command. हम रिपोर्ट कमांड के इस्तेमाल से we can easily create a new report. Okay, how to we create a new report? So let's get start. Step 1 क्या है आपका? Click on the table for which you want to create a record from the navigation pane. Navigation pane में जाइए और employments आप एक create report करने के लिए create report पर क्लिक करिए. In the create tab, जब आप create tab पर जाएंगे, क्लिक ऑन द रिपोर्ट बॉटम अंडर द रिपोर्ट्स ग्रुप. अब आप रिपोर्ट्स ग्रुप में जाइए, उसमें आपको जो रिपोर्ट ऑप्शन मिलेगा उसमें इजिली आप क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं. ओके, फॉर डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टैब्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द रिबन. दीज आर डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप. कुछ आपको अदर फीचर्स भी मिलेंगे जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर लेंगे. रिपोर्ट्स क्रिएट जब आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ अदर ऑप्शंस भी मिलेंगे लाइक डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट एंड पेज सेटअप. ओके, लाइक दिस, अरेंज, फॉर्मेट, पेज सेटअप एंड डिजाइन आल्सो. ओके, सो अब जब आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आते हैं तो आप एक साथ कई लोगों का डिटेल्स, एक साथ कई लोगों की डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं. सो दिस इज द रिपोर्ट. Okay, click on the save button. So this video is enough for you and your lesson is complete now. Okay, so अब हम इसमें जो भी वर्क करेंगे वो आपको प्रैक्टिकल बेस वर्क कराया जाएगा. इसमें आपको फुल डिटेल अबाउट द रिपोर्ट्स, क्वेरीज एंड फॉर्म्स की आपको फुल डिटेल्स मिलेगी विद द एडवांस फीचर्स के साथ मिलेगी. सो क्लास, दिस इज द इनफ फॉर यू एंड दिस इज द कंप्लीट वीडियो फॉर योर लेसन 4. ओके, सो थैंक यू क्लास. एंड वन मोर थिंग इज कि जो आपकी ये वीडियो क्रिएट हुई है आपके कंप्लीट फॉर्मेट में क्रिएट हुई है वन वीडियो, एंड जो नेक्स्ट वीडियो वो आपकी होगी या जो भी नेक्स्ट वीडियोस क्रिएट करेंगे वो आपकी फुल बेस्ड होंगी प्रैक्टिकल. आपके प्रैक्टिकल बेस में पूरी वीडियोस कराई जाएंगी जिससे आप प्रॉपरली देखें एंड उसे आप प्रैक्टिकल बेस में वर्क करने की कोशिश करें. ओके, सो थैंक यू क्लास.